Hello students. So in this part we are going to do need previous year questions. So let's get started. In this question number 20, that is, it is given that acceleration due to gravity at a height of 1 kilometer above the earth is same as a d depth below. Students, so we know that कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन सेम अगर हम डी डेप्थ नीचे जाएं इज इक्वलेंट टू अगर आप 2h हाइट ऊपर जाएं. दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द कॉन्सेप्ट विच यू कैन इवन मेमोराइज कि अगर आप डी डेप्थ नीचे जाओ या 2h ऊपर जाओ, वन एंड द सेम थिंग. क्वेश्चन में गिवन है हाइट इज गिवन टू बी टू 1 किलोमीटर. आप सिंपली इसकी जगह 1 किलोमीटर पुट कर दे तो डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 किलोमीटर. यानी या तो आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओ या 2 किलोमीटर नीचे जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में उतना ही चेंज आएगा. ओके, सो द ऑप्शन to this question is fourth, that is fourth is the right answer. Let's move to the next part. 21st question. Two astronauts are flowing in gravitation free space. It is given it is gravitation free space. That means अर्थ तो उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर रही, ग्रेविटेशन तो नहीं लग रहा है स्पेस में. अब वो एक दूसरे का कांटेक्ट छोड़ चुके हैं, सो क्या वो दोनों उतने ही डिस्टेंस पे रहेंगे? दीज आर द टू पर्सन. ग्रेविटी इन्हें अट्रैक्ट नहीं कर रही, अर्थ इन्हें अट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्या वो उतनी ही दूरी पे रहेंगे या पास आएंगे? स्टूडेंट्स, सो ऑल्दो इन्हें ग्रेविटेशन अफेक्ट नहीं कर रहा है, इन्हें ग्रेविटी नहीं अफेक्ट कर रही है, बट क्योंकि दे हैव सम मासेस, तो ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यू विल से कि दे विल गेट अट्रैक्टेड. ऑल्दो अर्थ उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर रही है, दे आर नॉट बाउंड टू अर्थ, बट क्योंकि इनके पास मासेस है तो दिल गेट अट्रैक्टेड to themselves. So we'll say they'll move towards each other. So you'll say move towards each other because of the gravitation force between them due to their masses. I hope students this is clear to you. Next question is question number 22nd. Starting from center of gravity, G varies as. We know students, so the variation of G with R is given as initially when we are at the center of earth, this is 0. As we go on increasing, as we go on till the radius of the sphere, G increases. As we reaches to the surface, G turns out to take the maximum value. And then as we go on beyond that, that is जैसे जैसे स्पीयर के बाहर जा रहे हैं, G again decreases with the formula G is inversely proportional to 1 by R square. When it increases, it follows by this. G's maximum value, acceleration's maximum values at the center, that is at the surface, it will have a maximum value. So the option to this question is question number second. Let's move to the next. एक satellite is orbiting at a h height. Total energy in terms of this. So students, total energy for the surface of Earth. Let me give you some concept. Total energy for the surface is given by minus gmm by 2r. This is if you're talking about the surface. Let us suppose अगर मैं थोड़ा सा h height ऊपर जाती हूँ, so the total energy will get out to be minus gmm by 2 r plus h. अगर आप h height ऊपर जा रहे हो, this is earth. अगर आप h height ऊपर जा रहे हो, तो this is at some height h. Now in this question it is asked, आपको total energy लिखनी है in terms of small g. So what are you going to do? We know g is equals to capital G m by r square. यहाँ से हमने क्या किया, सिंपली gm की वैल्यू निकाल दी, that is small g by r square. Once we got the value, what we are going to do, we are going to put this into the value. ये वाली वैल्यू हम इसमें जाके रख देंगे. So the answer will come out to be simply total energy is equals to minus g r square. बाकी के सारे टर्म्स आप एज इट इज लिख सकते हो.
तो ये बन जाएगा -GmR² by R+H. So students, the right answer to this is option number second. Let's move to the next question. At what height from the surface ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है दिस, और आपको ग्रेविटी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दिस है. सो क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन जी की वैल्यू है GM बाय एट अ हाइट गिवन है, तो वी आर यूजिंग R+H का स्क्वायर. वैल्यू आपको गिवन है 6, और आपको पोटेंशियल की वैल्यू है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू है एट सम हाइट इज गिवन आउट टू बी R+H is given out to be -5.4 into 10 की power 7. So students, in this question, examiner wants to know what will be the at what height. We need to calculate the h value. So best approach is दोनों को divide कर दो, rest जो भी unwanted terms है they'll get cancelled. तो आपने दोनों को divide किया, so the result is simply V by G is equals to, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा स्टूडेंट्स? सो यू विल गेट V by H इज इक्वल्स टू, V के सारे टर्म्स आप लिखोगे GmR+H डिवाइडेड बाय, देन यू राइट फॉर द G टर्म्स दैट इज GmR+H का स्क्वायर. This get cancelled, these all get cancelled, you will be left with these terms. पोटेंशियल की जगह आप वैल्यू रखोगे दैट इज -5.4 इंटू 10 की पावर 7. जी की जगह आप रखोगे 6, R+H, आर की जगह आप रखोगे 6400 किलोमीटर प्लस एच. नाउ सिंस वी आर टेकिंग दिस ऑल टर्म्स इनटू किलोमीटर, आप देखिए रेडियस ऑफ अर्थ की जगह मैंने लिखा है 6400 किलोमीटर. ऊपर वाला जो टर्म है दैट इज ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ ऐसा यूनिट. अब मैं क्या कर रही हूँ, इस टर्म को भी आई एम कन्वर्टिंग, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड. मैं इसको बदल के लिख रही हूँ 6 × 10 की पावर -3. दिस विल बिकम किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज मैंने बस मीटर की जगह सारी यूनिट को किलोमीटर में ले लिया. व्हेन यू विल टेक इट, आप इसको डिवाइड करो, द रिजल्ट विल कम आउट टू बी, जब आप इसको सॉल्व करोगे h की वैल्यू आएगी, h की वैल्यू विल कम आउट टू बी 1600 किलोमीटर. So the option to this is question number third, that is third is the right answer. Now let's proceed to the next question, that is 25th. Ratio of escape velocity at Earth to escape velocity at planet, radius and mass density are twice will be. आपसे पूछा गया है कि एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूछा हुआ है. सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट द एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला 2Gm/r. इसी को इन टर्म्स ऑफ g, स्मॉल g कैन बी रिटन एज 2GRE. एग्जामिनर ने आपको मास नहीं, मास डेंसिटी के टर्म्स में पूछा है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम दैट इज 4/3πr³. यहाँ से मास के टर्म्स को आई विल राइट, मास का फॉर्मूला लगा के आई गेट द वैल्यू ऑफ जी, दैट इज मैं जी में चेंज लेके आ रही हूँ इन टर्म्स ऑफ मास डेंसिटी. सो यू विल से सिंपली जी, जी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स GM/r². इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन कि एस्केप वेलोसिटी गिवन है, एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट पे गिवन है, एक और प्लेनेट पे पूछा हुआ है जिस पे मास डेंसिटी डबल है. जब आप एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखोगे स्टूडेंट्स, तो यू विल से यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज आ रहा है, रेडियस तो वही है, उस रेडियस एंड मास डेंसिटी आर ट्वाइस, तो रेडियस में चेंज आ रहा है और मास डेंसिटी में. तो मास डेंसिटी अगर बदलती है तो स्टूडेंट्स जी, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाती है. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं जी में चेंज पता लगा रही हूँ कि एक्चुअली में जब मास डेंसिटी बदलती है तो जी में कितना चेंज आता है. जी में चेंज निकालने के लिए मैंने सबसे पहले जी के फॉर्मूले को लिखा है इन टर्म्स ऑफ मास डेंसिटी. दिस विल बिकम जी, मास के टर्म को हटा रही हूँ और मास डेंसिटी के टर्म को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. 4/3πr³ डिवाइडेड बाय r². यू विल से
जी का फॉर्मूला बन जाएगा जी रो 4 पाई r/3 इंटू जी। अब आप देखिए, जब मैं मास डेंसिटी को बदल दूंगी, दैट इज नया वाला मेरा जी क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा नया जी बन जाएगा, दैट इज आप बोल रहे हो कि एक जगह आप मास डेंसिटी को भी डबल कर रहे हो और रेडियस को भी डबल कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, क्या मेरा नया जी डैश 4 टाइम्स प्रीवियस नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, तो नेट इफेक्ट तो आप 4 गुना बढ़ा रहे हैं। तो जी डैश की वैल्यू बन जाएगी 4g। मुझे जी डैश की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे पता लगाना है एस्केप स्पीड में क्या चेंज आता है। सो स्टूडेंट्स, एस्केप स्पीड में क्या चेंज आएगा, आप बोलोगे जो नया वाला एस्केप स्पीड होगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी में कितना बदलाव आया, आपने बोला 4 गुना बढ़ गया। रेडियस में कितना चेंज आया, रेडियस 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, डिवाइडेड बाय द इनिशियल escape velocity, that is simply 2 g r। आप इन सारे टर्म्स को कैंसिल करोगे, यू विल गेट v escape डिवाइडेड बाय प्रीवियस v escape, या प्लेनेट का v escape डिवाइडेड बाय द अर्थ का v escape इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2/2, दैट इज 2/2 डिवाइडेड बाय 1। एग्जाम में उल्टा पूछा हुआ है, क्वेश्चन उल्टा पूछा हुआ है, तो सिंपली डिनोमिनेटर को आप रेसिप्रोकेट कर दोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू दिस। तो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। Students, the next question is satellite is moving around this. Then what will be the correct answer? Students, जब भी एक सैटेलाइट मूव करती है अराउंड अर्थ, एक चीज याद रखना, कोई भी चीज अगर गोल अगर घूम रही है, तो एक एक्सेलरेशन जरूर से ही लगेगी टुवर्ड्स इन द बॉडी, टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वैल्यू हरदम होगी टुवर्ड्स द सेंटर। डायरेक्शन विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। So the acceleration is always directed towards the center. This is the right statement. Next में given है angular momentum about center changes its direction but magnitude remains constant. So students, angular momentum remains constant. This is the law which we got from Clapner's law. Next is total mechanical varies. No students, total mechanical energy कभी भी vary नहीं करती. It is always constant. नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। सो स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। लीनियर मोमेंटम की वैल्यू बदलती है क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंजेस। आपको पता है सन के अगर हम पास होंगे, सन के नियर होंगे, तो वेलोसिटी का टर्म ज्यादा होगा। सन से आप जैसे ही दूर जाते हो स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन आपसे गिवन है कि ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स। सो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट इज सिंपली अंडर रूट 2gmr+h। अगर मैं बात करूं स्मॉल जी की, स्मॉल जी के टर्म्स में, so students the formula comes out to be g into r plus h। आपको क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला रख देना है, वैल्यूज रख देनी है। 9.8 सारी टर्म्स आपको गिवन है, आप देख सकते हो। इसमें आपसे ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू पूछी हुई है, आर की वैल्यू आपको गिवन है दिस, एच की वैल्यू गिवन है दिस। सिंपली आर की वैल्यू हो जाएगी 6.38 इंटू 10⁶ प्लस 0.25 इंटू 10⁶। So students, आप सिंपली इसकी वैल्यू रखोगे, you'll get 6.517, that is समथिंग समथिंग की वैल्यू हो जाएगी 6.6 समथिंग किलोमीटर पर सेकेंड। Let's move to the next question. क्लैप इसमें बोला हुआ है कि क्लैपनर लॉ स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ पीरियड, वी नो दिस इज अ क्लैपनर लॉ, where k is a constant if mass of sun and planet this are given and force is given, gravitation force is given। इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको दो चीजें गिवन है और पूछा हुआ है जी और के में क्या रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले
मैं क्या करने वाली हूँ स्टूडेंट्स, मैं ग्रेविटेशन फोर्स को यूज करते हुए कोई फॉर्मूला डिड्यूस करने वाली हूँ जिसमें टाइम पीरियड की वैल्यू है। देखिए, फोर्स मुझे गिवन है, मैं इसको यूज करते हुए एक ऐसा रिलेशन निकालूंगी जिसमें टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाए, सो दैट मैं इसमें लिंक सेटअप कर पाऊँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो, जब भी ग्रेविटेशन फोर्स को यूज करते हुए टाइम पीरियड का जिक्र हो या ओमेगा का जिक्र हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर में जा रही है, स्टूडेंट्स आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख सकते हैं, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर बॉडी मोशन में हो रही है, आपसे टाइम पीरियड या ओमेगा का जिक्र कर रखा है, टाइम पीरियड या ओमेगा का जिक्र है और ग्रेविटेशन फोर्स यूज करना है, तो यू कैन सिंपली यूज दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज कोई भी बॉडी, स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन और अर्थ ले लेते हैं, कोई भी सन और प्लेनेट अगर घूम रहा है तो उसके ऊपर एक बॉडी जो सर्कुलर मोशन में जा रही है, उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर। कौन देगा स्टूडेंट्स ये सेंट्रीपिटल? तो आप देखोगे, आप बोलोगे इन दोनों बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, वो मैं देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज जी एम एम बाई आर का स्क्वायर, that is gmm by r का square. Now students, we need to calculate for the time period. मुझे टाइम पीरियड में रिलेशन चाहिए, तो इसलिए मैं ओमेगा को चेंज करके लिख रही हूँ एज 2 पाई बाई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू gmm बाई आर का स्क्वायर। आप यहाँ से क्या करोगे, अब देख सकते हो आप यहाँ पे कि हमने इजीली टी और आर का टर्म तो इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मुझे जानना है टी और आर के बीच में रिलेशन कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे एक आर है, इसको यहाँ पे लेके जाऊंगी, ये बन जाएगा 1/t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/r³ is directly proportional to 1/r³। स्टूडेंट्स, मुझे इनमें रिलेशन चाहिए, तो मैंने देखो क्या किया, m से m कैंसिल, इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए तो टी स्क्वायर, सारे टर्म्स देखो सोल्व किए, 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, आर का टर्म इधर चल गया, ये बन जाएगा gm/r²। वी नीड टू कैलकुलेट कि g और r, मुझे इन दोनों के बीच में ऐसा सा कुछ रिलेशन सेटअप करना है, ऐसा सा रिलेशन सेटअप करना है सो दैट k के वैल्यू निकल। स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, मैं इस फॉर्मूले से चली और इस फॉर्मूले से चल के यहां तक जाने की कोशिश कर, हमने पहले सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर रखा और यहां से टाइम पीरियड का टर्म इंट्रोड्यूस करा और इन दोनों में रिलेशन दिख रहा है। तो सिंपली टी स्क्वायर मान, दिस formula will come out to gm/t² is equals to 4 पाई स्क्वायर बाय r का स्क्वायर। आपको टी स्क्वायर और के स्क्वायर में रिलेशन चाहिए, टी स्क्वायर और r क्यूब में रिलेशन चाहिए था, तो इट विल बिकम टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाय gm r का क्यूब। आपने देखा, आपने देखा क्वेश्चन में आपको गिवन था टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर का क्यूब। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि k की वैल्यू हो जाएगी एज gm² बाय kr²। I hope students this is clear to you. Let's move to the next question. A black hole, in the next question it is given, a black hole is given so strong that light भी बाहर नहीं जा रही। स्टूडेंट्स, ब्लैक होल का ये कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ से लाइट भी बाहर नहीं जा पा रही, लाइट को भी वो अट्रैक्ट अपने पास कर देता है। स्टूडेंट्स, तो किसी भी चीज को अगर प्लैनेट से ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप करना होता है तो उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए, दैट इज एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी वो चीज वहां से बाहर निकल सकती है। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन कि स्पीड ऑफ लाइट को भी वो बाहर नहीं जाने दे रहा, यानी ब्लैक होल के लिए क्या मैं कह सकती हूँ कि एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट, यानी इसको भी मूव नहीं करने दे रहा, इससे भी ज्यादा एस्केप वेलोसिटी है। तो इन दिस क्वेश्चन एस्केप वेलोसिटी की जगह मैं लिख रही हूँ 3 × 10⁸ दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी इस स्पीड को भी ओवर पार नहीं कर सकते हैं। इंटू 2, जी की वैल्यू हो जाएगी 6.67 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज मास ऑफ द
कैन बी रिटन एज 6 × 10⁻²4। स्टूडेंट्स ये कुछ वैल्यू है विच यू कैन मेमोराइज डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस की अगेन वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। जब मास की वैल्यू इज गिवन टू यू तो रेडियस यूज कर सकते हो 6400 किलोमीटर एंड दिस मास की वैल्यू यू कैन यूज जो भी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 5.98। आप क्वेश्चन में सिंपल करने के लिए इसको सिंपली 6 भी लिख सकते हो, ऐसा सच कोई इश्यू नहीं है। आपको रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हेन यू यूज आर की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद 10⁻² मीटर। सो स्टूडेंट्स द ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। Let's move to the next question. Students, in this question it is given इंटेंसिटी और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे यही सेम चीज अगर मान लो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा होता, स्टूडेंट्स तो आप ये टिक करके आते हैं। आपने देखा भी होगा ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर होते हो इट इंक्रीजेस, इट रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू, देन स्टूडेंट्स इट डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ दिस। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की स्टूडेंट्स, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि डायरेक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो लेट अस सपोज ये हमारी अर्थ है जिसका मास है m। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे स्टूडेंट्स मैं प्लॉट करती हूँ ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, लेट अस सपोज मेरा मास यहाँ पे रखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो द ग्रेविटेशन फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी, आप बोलेंगे कि ग्रेविटेशन फील्ड इस मास को बॉडी अंदर की तरफ खींचेगी क्योंकि अट्रैक्शन होगा। और स्टूडेंट्स आर वेक्टर है इस तरफ, आप क्लियरली देख सकते हैं कि आर वेक्टर और जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, दैट दिस दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आर वेक्टर और अगर मैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी को ड्रॉ करूंगी स्टूडेंट्स, तो द रिजल्ट विल कम आउट टू बी इट विल फर्स्ट इंक्रीजेस एंड दैट डिक्रीज। आपने क्या किया स्टूडेंट्स, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैंने ऊपर बनाया है, अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की स्टूडेंट्स, तो इसको क्या किया है नीचे की तरफ प्लॉट किया है बिकॉज आर एंड ई आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। सो स्टूडेंट्स द ऑप्शन विच मैचेस इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, it is given a body of mass is at a height equal to twice the radius. तो change in potential energy की वैल्यू क्या होगी students? So the potential energy at the surface is written as minus gmm/r। किसी भी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी -gmm/r+h। क्वेश्चन में आप गए हो 2r हाइट पे तो आप बोलोगे यू फाइनल की वैल्यू होगी -gmm/r। h की जगह आप रखोगे 2r, तो द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स -gmm/3r हो जाएगी। आपसे बोला हुआ है कि what will be the potential energy change in potential energy, that is u final minus u initial, वैल्यू हो जाएगी -gmm/3r, माइनस इनिशियल वैल्यू इज माइनस ऑफ माइनस gmm/r। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू टू बी gmm/r 2/3। अगर आप इसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको जी के टर्म्स में लिखना है स्टूडेंट्स, तो जी का फॉर्मूला होता है gm/r²। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि gm इज इक्वल टू gr²। आपको बस इसमें पुट करना है तो यू विल गेट द वैल्यू चेंज इन एनर्जी विल बी 2/3 gm की जगह रख रही हूँ gr²/r। यू विल सॉल्व द वैल्यू टू बी 2/3 mgr। आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, it is given infinite number of problems are given, infinite number of masses are given, masses x एक्सिस पे रखा है, डिस्टेंस ऑफ दिस और ओरिजिन पे उनका पोटेंशियल पूछ रहा है स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन इज यहाँ पे आपसे पोटेंशियल की वैल्यू पूछी हुई है। पहले 1 मीटर पे आपको मास रखा हुआ है 2 kg, 2 मीटर पे रखा हुआ है 2 मीटर पे रखा हुआ है 2 kg, 3 मीटर पे रखा हुआ है
2 kg, 3 मीटर पे रखा हुआ है 2 kg। पोटेंशियल की वैल्यू पूछी हुई है। पोटेंशियल की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है सिंपली -gm/a। कितनी दूरी पे? इन द क्वेश्चन पहले वाले मास की वजह से पोटेंशियल आएगा -gm/, कितनी दूरी है? यूल से पहले वाले मास की दूरी है 1, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज किया दैट इज 1 -gm/। दूसरा वाला मास कितनी दूरी पे? आप बोलोगे 2 सेंटीमीटर। तीसरा वाला मास -gm/, ओके स्टूडेंट्स दिस इज 4, तो 4। चौथा वाला मास -gm/8 क्वेश्चन में गिवन है। आप यहां से लिखोगे -gm कॉमन, अंदर बचेगा 1 +1/2 +1/4 +1/8 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी प्रॉब्लम। इनफाइनाइट जीपी प्रॉब्लम का वैल्यू होती है 1 - r, दैट इज इनफाइनाइट जीपी में होता है स्टूडेंट्स सम की वैल्यू आती है a1 - r। e की वैल्यू हो जाएगी, e इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज द फर्स्ट टर्म जो भी आप इसमें यूज कर रहे हो। फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स 1। r होता है स्टूडेंट्स, r होता है कॉमन डिफरेंस इनके बीच में जो है आपको पता लगाना होता है। सिंपली आप ये वाले टर्म्स में से, दैट इज दूसरे टर्म्स में से इसको डिवाइड कर दो, तो आपको r की वैल्यू हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाई 1। कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स? दैट इज 1/2। सिंपली तो इसका सम हो जाएगा -gm एज इट इज लिखा, इसका सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म लिखो क्या है, दैट इज 1 1 - r। r यानी इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो लिखो, दैट इज 1/2 स्टूडेंट्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी -gm/2। क्वेश्चन में गिवन है मास आपके पास 2 kg का, जब आप पुट करोगे वैल्यू आ रही है 4g। so the option which matches is option number 3rd. Let's move to the next question. In this question आपसे बोला गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछी हुई है इन टर्म्स ऑफ d स्टूडेंट्स। सो द वैल्यू विल बी, आपसे g की वैल्यू पूछी हुई है, g की वैल्यू होती है सिंपली gm/r²। इन दिस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। इन टर्म्स ऑफ डायमीटर कितना होगा? आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पे रेडियस की जगह डायमीटर रखा, डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी दैट इज, रेडियस की जगह अगर रखेंगे d/2 का होल स्क्वायर, दिस विल बिकम g इज इक्वल टू gm। डायमीटर का टर्म एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा 4। आपने यहाँ से जो भी डिनोमिनेटर से 2 आया वो चला जाएगा ऊपर, द वैल्यू विल बी 4। so the option which matches is students, the option which matches is this option number 3rd. Let's move to the next question. In this, a geostationary satellite height above the earth surface given है, टाइम पीरियड पूछा हुआ है। टाइम पीरियड आपको पता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 24 घंटे, 24 आवर। और बोला हुआ है कि एक और सैटेलाइट है जो कि 2 आवर सरफेस से ऊपर है, 2 आवर ही ऊपर है, उसका बताओ, उसका बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। So students will simply use Clapner law, that is t square is directly proportion to r cube। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा, t1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 उसका रेडियस का क्यूब डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय r2 का क्यूब। तो ये बन जाएगा t1, पहले वाले का कितना होगा, पहले वाले का टाइम पीरियड हो जाएगा 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय नीचे वाले का टाइम पीरियड कितना आएगा स्टूडेंट्स, t इंटू टी इज इक्वल्स टू पहले वाले का रेडियस कितना है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे 5 आर नहीं यूज करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस का टर्म होता है दैट इज यूज सरफेस से कितना ऊपर। तो सरफेस से स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना ऊपर होगा, 5 आर प्लस आर। तो आप बोलोगे, क्योंकि देखो ये यहाँ से ऊपर है 5 आर, तो जब भी आप वैल्यू लेते हो ये रेडियस ऑफ अर्थ से लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 6 आर। तो ये बोलोगे 6 आर का क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 2 आर फ्रॉम द सरफेस, अगेन आप क्या लिखोगे, 3 आर फ्रॉम द सरफेस। स्टूडेंट्स जब आप इसको यूज करोगे तो ये वैल्यू आएगी 24/24, 24/24 इज इक्वल्स टू t इंटू टी इज इक्वल्स टू
6 डिवाइडेड बाई 3 जब आप इसे सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 1263। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 24 × 3। टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, अगर आप इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा 6√2r। ओके, so the option which matches is option number first. Let's move to the next question. Height at which acceleration, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। आपसे बोला गया है कि वेट की वैल्यू चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स, वेट होता है एम जी। अगर वेट चेंज हो रहा है मतलब मास तो कांस्टेंट है, जरूर जी डैश में चेंज आया होगा। जी डैश में कब चेंज आता है? या तो आप एच हाइट ऊपर जाते हो या डी डेप्थ नीचे आते हो। स्टूडेंट्स, तो अब सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, जी डैश की वैल्यू पता लगा रही हूँ कि अगर मैं इतना मूव करूंगी, अगर मैं इतना हाइट पे मूव करती हूँ तो जी डैश में क्या चेंज आता है। आप बोलोगे जी का फॉर्मूला होता है 1 + h/r का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी। एच हाइट की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स? आप बोलोगे एच हाइट की वैल्यू हो जाएगी दैट इज कितना मूव कर रहा है स्टूडेंट्स को। अच्छा, हाइट की वैल्यू पता लगानी है h/r का स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है वेट बिकम्स 1/16, यानी आप कह सकते हो जी डैश की वैल्यू हो जाती है 1/16। जी की वैल्यू हो जाती है 1/16, यानी जो नया जी है उस प्लेस पे जो जी है दैट इज 1/16 of the previous value, that is g by 16 is equals to g 1 plus h by r का स्क्वायर। g से g कैंसिल, ये बन जाएगा 1/16। 16 को लिख रही हूँ 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस h by r का स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं 4 का स्क्वायर? क्योंकि स्टूडेंट्स हमें 4 का टर्म हटाना है, तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस h by r। आप इसे सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा h की वैल्यू आ जाएगी 3r। So this is the right